explore personal growth, confident life lessons, inspiring stories, and meaningful conversation. My goal is to help you learn, grow, and become the best version of yourself. Thank you for being here. Let's begin this journey together. Today, I'm really excited to introduce our special guest, Mrs. Nushaba Faraz, a principal of Darul School, Western campuses, and an Iron Lady. Thank you so much for joining us today. We are looking forward to know your inspiring stories. Welcome. Welcome, Musfra. And it is very pleased to see you on this stage to like asking question from me. It's a pleasure for me as well. Okay. Please introduce yourself and tell us about your journey as a principal. So this is Nashaba Faraz, a principal Darikam School, and I'm working from last 17 years as a principal. And as you are asking, principal is not a person who is sitting on the seat always. Principal, should I speak in English or Urdu both? Yes, you can. Okay. So principalship is not like sitting on the seat. It is about creating an environment, facing many challenges, and having big dreams. So yes, I am serving at Tayarkam School from last 17 years as a principal. And this is a very challenging seat, I guess. Very inspiring. What inspired you to choose education as your field? As everyone who is connected with education feels that education is the only thing that can change the society, or education is only the only thing who can change the minds. So the minds of this new generation, yes, this is my dream, to change the minds of this new generation. So this is the only opportunity, and this is the only way, like education is the only way to change the minds. So this is my, you can say, the dream job earlier, and I wish to change the world. And you can say कि मेरा dream मुझे यहाँ तक लेकर आया. Okay. How did you start your career in education and what challenges did you face? Yes, in the start, when I remember the starting days, yes, I come with a dream of to change the world. But जब आप field के अंदर आते हैं and you met lot of people different around you, आप students को देखते हैं, आप parents को देखते हैं, teachers को देखते हैं, आपका एक ख्वाब अपनी जगह, आपका एक विजन अपनी जगह. जैसे कि आपको पता है कि मैं दायर अरकम स्कूल के साथ कनेक्टेड हूँ, तो दायर अरकम का जो विजन है ना, असल में वही मेरी सोच और वही मेरा ख्वाब है. ठीक है. टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, उसके लिए हमें बेटर ह्यूमन बींग्स क्रिएट करने हैं. तो यही एक स्टार्टिंग पॉइंट था और मेरे जर्नी का, जिसमें हमने जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी. लेकिन उस वक्त आई वाज नॉट थिंकिंग कि इतने चैलेंजेस और इतने हर्डल्स, जो मैं आपको बताऊं कि इन द फॉर्म ऑफ, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीडिया का दौर या इसका जो गलत इम्पैक्ट, गलत यूज़ है, उसकी वजह से जो हम चैलेंजेस आज तक फेस कर रहे हैं, तो हमें हर दिन एक नया दिन लगता है. तो मुझे लगता है कि हर दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन एक नई हर्डल है, एक नई ऑब्स्टिकल है. तो उसको कैसे हमने ओवरकम करना है, उस चैलेंज को कैसे, उन चीज़ों को ठीक करना है, ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने सोचा या हम फर्स्ट डे जिस तरह आए थे कि जिस ख्वाब के साथ, तो वो ख्वाब इतनी आसानी से पूरा हो सकता है. हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे विजनरी और बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जिनका सेम ड्रीम हो, जो दुनिया को चेंज करना चाहते हो अपना रोल प्ले करके, कि कल हमें इस नाम से याद किया जाए कि ये वो लोग थे जो इस विजन के साथ काम कर रहे थे कि सोसाइटी के अंदर प्रोडक्टिव सिटीजन्स पैदा हों, अच्छे इंसान, अच्छे ह्यूमन बींग्स विद गुड ट्रेड्स, विद गुड कैरेक्टर. तो ऐसे लोगों की जब टीम बनती है तो तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. तो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस टिल टुडे, 17 ईयर्स के बाद भी मैं ये कहती हूँ. बट फिर भी हमारा ख्वाब जिंदा है. और yes, we see that there are many opportunities as well. After 17 years, आपका सोचने का अंदाज, मैं अगर अपने आप को देखूं तो सोचने का अंदाज, आपका चीज़ों को देखने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है.
every day is for learning, and we are learning a lot of new things when we are meeting with the new student, with the new teachers, और कम्युनिटी में जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं. तो चैलेंजेस आर स्टिल देयर, बट वो ड्रीम जो है वही स्टार्ट था. Okay, so inspiring. What was your biggest achievement as a principal? Being a principal is my biggest achievement, to see you on the camera right now and to see every child of mine on the level where they got the confidence to speak with others, where they got the skills. ये है मेरी अचीवमेंट. मेरी अचीवमेंट वो ग्रेड्स डेफिनेटली हैं. एक टाइम था कि हम सोचते थे कि जो बहुत अच्छे ग्रेड्स हमारे स्कूल में आएंगे तो हम कामयाब हैं. बट अब मैं ये सोचती हूँ कि ये वही जर्नी है. इस जर्नी के साथ जो चेंज है वो यही है कि अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस से बात करे, मेरा बच्चा स्किलफुल हो, मेरा बच्चा सोसाइटी में जहां पर भी जाए वो एक मिसाल बने. तो दिस इज द बिग अचीवमेंट. Okay. What qualities do you think make a successful principal? Yes, principal. Being a principal is not like about, it is a leader, it is the job of a leader, but leader is not the one who is always giving instructions to other. ऐसा नहीं है कि हमेशा एक लीडर जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, बल्कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है एक बंदे के लिए. एज अ लीडर, द सक्सेसफुल लीडर इज द वन हु कैन change the lives of others. जो दूसरों में ट्रांसफॉर्म कर सके, जो वो चाहता है वो अपनी टीम के अंदर वो विजन ला सके. तो दिस इज यू कैन से कि हमारा ये प्रिंसिपल होने के लिए मेरी ये ख्वाहिश है एज ए लीडर कि मैं बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करूं. ठीक है, फॉलोअर्स क्रिएट ना करूं, लीडर्स, those who are good in decision making, those who have the same or more than this dreams to change the world. ऐसे लीडर्स हम पैदा करें. वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी पीपल भी हो सकते हैं. Okay, what is the biggest challenge faced by school leaders in Pakistan schools? These days, biggest challenge we are facing as a school principal, which I am facing these days. Sorry, I don't know, it should be shared or not, like Gen Z is the problem, actually. Actually, we were not expecting such things in our young age or in our childhood age, when we were in like class 9th or 10th, और जो हमारा एज ग्रुप के जो लोग होते थे वो किस तरह सोचते थे, किस तरह काम करते थे, उनकी जिंदगी का कोई मकसद होता था. इवन एजुकेशन में ही अगर उन्होंने अपने कुछ गोल सेट किए होते थे. बट स्टूडेंट्स दीज डेज आर वेरी हार्ड टू हैंडल, बट दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. उस वक्त के लोगों से अभी के बच्चों में टैलेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली, because we are facing the problems. The reason is the child is different today, but the conventional education system is same as we were having. तो ये है जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे पास, कि हमारा जो इस वक्त बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो टोटली डिफरेंट है, और हम अभी उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है. दिस इज द चैलेंज. Okay. How has your rules as a principal changed over the years? Sorry, I didn't get your point. How has your role Yeah. as a principal changed over years? So my role as a principal was always not giving the only instructions. It is always about touching the hearts, building characters, solving problems of others, helping people around me, and to discover their talent. So I am doing the same things which I'm supposed to do, but definitely
with the passage of time, I realized that is not an easy task. But सेम पेस पे, सेम पॉइंट्स पे, बदलते हुए ख्यालात, बदलते हुए नजरियात, बदलती हुई दुनिया के साथ हम इन चीजों को आप समझ लें कि ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के अंदर नया टैलेंट उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. How do you motivate teachers to give their best performance? Yes, teacher is always a role model. And as we are connected with a Muslim school, and this is the basic, actually हमारा जो introduction है वो इसी तरह करवाया जाता है कि दारुल उलूम स्कूल एक इस्लामिक स्कूल है. ठीक है, तो टीचर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी न्यू द टीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया. ऐसा ही है, वो अरब जो बिल्कुल अंधेरों में डूबा हुआ था, उस एक उस्ताद की वजह से, उस एक टीचर की वजह से, जो सब कुछ थे लेकिन उन्होंने अपने आप को टीचर कहा ना, तो उस एक टीचर की वजह से सोसाइटी में चेंज आ गया, पूरी दुनिया में चेंज आ गया. तो यही मुमकिन है आज भी. एक टीचर जो है ना, वो दिल भी बदल सकता है और दिमाग भी बदल सकता है. सो टीचर कैन डू एनीथिंग इफ ही और शी इज विजनरी, इफ शी और ही इज हैविंग अ वेरी बिग, एक बहुत बड़ा मकसद हयात है, अगर उनका एक बहुत बड़ा वो एक सोच रखते हैं, एक विजन रखते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन चेंज द वर्ल्ड, दे कैन चेंज द माइंड्स ऑफ दिस न्यू जनरेशन. Okay. How do you create a positive learning environment for students? To create a positive learning environment, we definitely discuss with the teachers. As the students is entering to the school in the morning, I always see their faces. बहुत दफ़ा मैं बच्चों को देखती हूँ, सलाम भी करती हूँ, और मुझे हर बच्चे के अंदर एक मुकम्मल इंसान नजर आता है जिसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन दे आर डिफरेंट. जैसे कि उनके चेहरे डिफरेंट हैं, जैसे कि उनके खदोखाल डिफरेंट हैं, वैसे उनके पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं, वैसे उनके टैलेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन हर बच्चा खास है. हम ये चाहते हैं, और हमारे बहसियत प्रिंसिपल और एक विजनरी टीचर के तौर पे भी मैं ये चाहती हूँ कि वो वक्त आए कि हम हर बच्चे को इंडिविजुअली उसका जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर कर सके और उसको उन लाइंस पे चला सकें कि जिसका वो हकदार है, या जिसको वो ड्रीम करता है, या जैसी वो जिंदगी जीना चाहता है, या जैसा वो रास्ता चूज करना चाहता है. ये तब होगा जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी तब्दीली आएगी, और वो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं, जैसे रेहान अल्लाह वाला स्कूल, जिसका इस वक्त आप मेरे लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है. और हम एज ए दारुल उलूम टीम, हम भी ऐसा काम कर रहे हैं. Okay, what changes do you want to see in Pakistan education system as a principal? Yeah, very good question. Yes, I want to see a topsy-turvy change, total change in Pakistan education system. मतलब आप समझें कि जमीन को आसमान पे और आसमान को जमीन पे पलट दिया जाए, ऐसा सिस्टम में चेंज चाहिए. ठीक है, एजुकेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग ओनली ग्रेड्स, बट हम लास्ट decades we were working on the same, like getting grades, numbers लेने हैं, इसी पे काम कर रहे हैं. बट अभी जो दौर है उसमें हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि अभी जो स्किल्स हैं वो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और जो बच्चा स्किलफुल नहीं है, वी आर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल डेली, दोज हु आर हैविंग वेरी गुड डिग्रीज, एमफिल डिग्री, पीएचडी डिग्री, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक. मतलब उनको ये एक स्पीकिंग स्किल भी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं हुई. तो हमें इस वक्त स्किल्स इम्प्रूव करनी है, हमें सोचने वाला बच्चा पैदा करना है, जिसका अपना कोई मकसद हयात है, जिसकी जिंदगी का अपना कोई मकसद है, वो सोचता है, वो अपने मकसद को तलाश करता है, वो अपने मकसद के लिए गाइडेंस चाहता है, उसको एक ट्रैक चाहिए, जिस मकसद अपने वो मकसद को अचीव करने के लिए कोई ट्रैक ज्वाइन कर सके. तो इंशाल्लाह ये चेंज है जो हमें पाकिस्तान एजुकेशन में चाहिए, कि हम अनफॉर्चुनेटली जो एक ही लाठी से हाँकते हैं घोड़े और गधे को, तो ये लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिस इज द ट्रू मीनिंग, और हमें ये नहीं करना.
हमारे पास आने वाला हर बच्चा खास है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, और हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आना है, और एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या आहिस्ता आहिस्ता हमें लेके आनी है। इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे हैं और हम काम भी इस पे कर रहे हैं कि जो बच्चों को स्किलफुल बना सके, जो बच्चों को कॉन्फिडेंट बना सके, जो बच्चों को लोगों को थामने वाला बना सके। उसके माइंड में सिर्फ ये ना हो कि मैंने सबसे अच्छे नंबर लेने हैं, उसके माइंड में ये हो कि मैं कितने लोगों की जिंदगी पे अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ, मैं कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ। ये चीजें जब उसकी करेक्टर बिल्डिंग होगी, जब उसकी उसके विजन की बिल्डिंग होगी और वो उसकी सोच की बिल्डिंग होगी, तो इनशाला हम कम्युनिटी में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग देख सकेंगे इंशाल्लाह। और ये ही एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली चाहिए इस वक्त। Okay, Abhi, you are talking about the skills. So my next question will be that what skills should students learn beside academic knowledge? देयर इज हम एक पोइट्री है इकबाल की कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो हम तो बहुत लिमिटेड जहां को जानते थे ना, अभी जो जहां है वो तो बहुत बड़ा है। अभी जब हम किसी भी नई चीज में पढ़ते हैं तो हम पहले तो हमारी जो जनरेशन है उसकी आंखें खुली रह जाती है, मतलब इज इट पॉसिबल, हमारा ये क्वेश्चन होता है अपने आप से। लेकिन इस वक्त आप इतना वास्ट ये आपने जो क्वेश्चन किया है, इसका इतना वास्ट मीनिंग हो सकता है कि इसमें स्किल्स, आप टेक्नोलॉजी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे चले जाएं, आप इमेजिनरी स्किल्स पे चले जाएं, आप सोशल स्किल्स पे चले जाएं, आप लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाएं, आप बच्चों को अपने दीन से कनेक्ट करें। दीन के अंदर सिर्फ उसको रटने वाला मत बनाएं, उसको समझने वाला बनाएं, उसके अंदर रिसर्च वाला बनाएं कि जो उसको उसका ट्रू मीनिंग के साथ उसको समझ सके, दुनिया को तस्खीर कर सके। वो तस्खीर तभी होगा जब ये सारी स्किल्स इंसान के अंदर आएंगे। तो अभी स्किल्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा ट्रैक किया जा सकता है एजुकेशन के हवाले से कि आप किस लेवल के बच्चे को कौन सी स्किल्स सिखा रहे हैं, और फिर जब लेवल बच्चे का एनहांस होगा तो फिर वो कौन सी स्किल्स पे जाएगा। सो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी दीज डेज, जो एआई टूल्स जैसे आप लोग भी सीख रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम दिस एआई अभी आप इससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके सोचने का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, मतलब आप की एज का बच्चा जो नॉर्मली अगर आपको 20 बच्चों की एक क्लास में बिठा दिया जाए, तो वो जो एआई बच्चा सीख रहा है उसका बोलने का अंदाज, उसका सोचने का अंदाज कुछ और होगा, बाकी बच्चों का और होगा। ठीक है, तो यही यही चीज है जो हम चाहते हैं, Okay, स्किल्स इस तरह से। जी, what role will artificial intelligence and innovation play in future classes? yes, artificial intelligence is playing a very vital role, and it will play a vital role in the future classes. बिकॉज अभी जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि एजुकेशन में तब्दीली आ रही है काफी हद तक, तो उसमें आपकी क्लास एक एग्जांपल है उसके अंदर। और हम ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये उसके पास पकड़ा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम पे चीजें देखता है, रील्स देखता है, गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम अगर वो इंफॉर्मेशन जो हम बुक्स में पढ़ा रहे थे कि पानी कैसे इवेपोरेट होता है और बादल कैसे बनता है, तो ये तो बच्चा एक छोटी सी वीडियो देख के सारा प्रोसेस समझ जाता है। ठीक है, तो हम वो पढ़ाते रहते हैं, एक ग्रेड में, दूसरे ग्रेड में, तीसरे ग्रेड में, उनके लेवल के मुताबिक। लेकिन अब वो जो हम 5 सालों में उनको अपग्रेड करके लेवल उनको समझाते हैं ना, वो एक 5 मिनट की वीडियो में वो पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक वो 5 साल के बच्चे समझ सकते हैं। तो एआई डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लासरूम्स को, एजुकेशन को, और हमें इसको पॉजिटिवली यूज करना है ताकि बच्चों के अंदर पॉजिटिव स्किल्स इनहेंस हो सकें इस एआई टूल्स की वजह से। लेकिन डेफिनेटली क्लासरूम्स को बदल रहा है। What advice would you give to young teachers who want to become educational leaders? Yes, teachers, and I used to tell every teacher that you should change your vision first. सोचने का अंदाज बदलें, जैसे आपने पढ़ा या जैसे उस्ताद ने आपको पढ़ाया, अब ना ये वो दौर है, ना आपके सामने हुए बच्चा बैठा हुआ बच्चा वैसा बच्चा है। अब ये दौर भी डिफरेंट है, और जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा तो बहुत ही डिफरेंट है। तो टीचर्स के लिए एडवाइस ये है कि अपने आप को अपग्रेड करें,
और उस चैलेंज को फेस करें जो हम आजकल इस एजुकेशन सिस्टम में फेस कर रहे हैं और हम उसको डील कर रहे हैं, उस चैलेंज को पॉजिटिवली फेस करें। और जब वो पॉजिटिवली फेस करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि जो अब सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसको किस तरीके से पढ़ाना है, इसको एजुकेशन की तरफ किस तरह लेके आना है। इसको हम चेयर पे स्टक करके टेबल पे कॉपी रख के नहीं पढ़ा सकते। इसको हम आउट ऑफ क्लासरूम ले जाएं, इसको इमेजिनेशन में कहीं ले जाएं, तो ये तब बच्चा सीखेगा। तो ये इस वक्त टीचर्स के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपना जिंदगी का एक मकसद बनाएं, नए दौर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और फिर उन चैलेंजेस पे काम करें। Okay. What message would you like to give to the students about their future? यस, बच्चों के लिए तो बहुत सारे मैसेज हैं। और जब बच्चे मेरे ऑफिस में आते हैं ना, आप जैसे, तो उनको तो मैं बहुत सारे मैसेज देती हूँ। तो बच्चों के लिए जो स्पेशल मैसेज है वो नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, और योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जो आज आप करेंगे, जितने पंक्चुअल आप आज होंगे, जितनी एफर्ट आप आज करेंगे, जितने फोकस्ड आप आज रहेंगे, उसका जो फल है वो आपको कुछ सालों के बाद मिलेगा। और इसलिए हमारा हर बच्चा खास है, किसी बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। उसको खुद ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि मुझे राइट और रॉन्ग में क्या चूज करना है। अभी दुनिया इतनी बदल चुकी है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा भी इतना मेच्योर हो चुका है कि वो ये समझ सकता है कि अगर मैं पूरा दिन बैठ के वीडियो गेम खेलूंगा या मोबाइल पे गेम खेलूंगा तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आई शुड लर्न न्यू स्किल्स। मुझे कुछ नया करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने पैटर्न्स को, लाइफ पैटर्न्स को चेंज करना है। तो स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि आपके लिए अभी बहुत जहान है, आपने बहुत आगे जाना है। अपनी जिंदगी का एक मकसद जरूर बनाएं और फिर उस मकसद के लिए एफर्ट स्टार्ट कर दें, और आपका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। यही आपकी कामयाबी होगी, Okay. इंशाल्लाह। Inshallah, looking back at your journey as a principal, what lesson has been the most valuable for you? I learned a lot of lessons, or I learned a lot of new things from the students, from everybody. लेकिन जो लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी सारी जर्नी के बाद, वो ये है कि जो मेरा फर्स्ट डे था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसमें मेरी सोच बिल्कुल और थी। उसमें मेरी सोच ये थी कि हमने बच्चों को, जो हमने बुक्स सामने पढ़ी हुई हैं, इनमें जितना नॉलेज है सिर्फ वो उनके दिमागों के अंदर पोर कर देना है, उनको अच्छे से रटवा देना है, और ताकि वो बहुत अच्छे नंबर ले सकें और कॉपी कैट बन सकें, जो वो देखें, जो उन्होंने पढ़ा है उसको लिख सकें। लेकिन अभी इट इज टोटली चेंज। आई डोंट वांट टू सी दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स नाउ। अब मुझे वो बच्चा चाहिए जो सोच के लिखे, जो सोच के जवाब दे, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता हो, जो वो ना सोचता हो सिर्फ जो चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। वो जो चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है उससे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आए और उनके जवाब वो तलाश करे टीचर की हेल्प से। तो अभी हमें वो बच्चा चाहिए। ये है मेरी लर्निंग कि मैं उस पैटर्न से अभी बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे आ चुकी हूँ कि जिसमें मुझे मुस्फरा के टैलेंट बहुत मुतासर करता है। मेरा हर बच्चा, मैं चाहती हूँ उनका टैलेंट मुझे मुतासर करे, और वो अपने अपने टैलेंट पे काम करें, किसी को देख के कॉपी मत करें, लेकिन वो उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट हो, उनका बात करने का अंदाज डिफरेंट हो, उनकी सोच डिफरेंट हो, उनका जिंदगी का मकसद डिफरेंट हो। Thank you so much. So that's bring us to the end of today's episode. A big thank you to our wonderful guest for sharing your time, experiences, and valuable insight with us. And thank you to everyone for listening to the growth journey with Musbia. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe my channel. See you at the next one. Take care. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz, everyone.